Hi guys, so we are going to start lesson 14 of Modern India Tamil Nadu class 12, and this lesson will be about Indian national movement 1885 to 1905. And this lesson is all about the origin and growth of nationalism in India, and how did Indian National Congress took birth. Then फिर कौन से लीडर्स एक्टिव थे इस पीरियड में, व्हाट काइंड ऑफ नेशनलिज्म वाज फॉलोड, व्हिच वाज बेसिकली द मॉडरेट एरा, दिस 1885 टू 1905, दिस वाज अ मॉडरेट एरा. तो यहाँ पे कांग्रेस में आपको दो काइंड ऑफ जो है कांग्रेसमैन मिलेंगे. वन वेयर मॉडरेट्स एंड द सेकेंड वन वाज एक्सट्रीमिस्ट. तो मॉडरेट्स जो थे वो पीसफुल प्रोपागेंडा में बिलीव करते थे कि हम पीसफुल तरीके से ब्रिटिश को अप्रोच करेंगे, विल प्लेस आर डिमांड्स एंड अल्टीमेटली ब्रिटिश विल हियर अस. इनका फंडा ये था. उन्हें लगता था कि इफ वी रिमेन लॉयल टू द ब्रिटिश, then britishers will be kind to us and they will kind of grant us whatever our demands are. उन्हें लगता था कि maybe the britishers are not aware about what are our demands, and they are kind of good to us, they kind of want good for us, but they are not aware about the demands. So moderates believed in peaceful propaganda, जो 3 P's भी बोलते हैं उनके: petitions, prayers, and protest. And extremists were like, no, Britishers are not going to hear by peaceful protests. We need aggression for ultimately attaining freedom in our country. So this was how the strategy of these two kind of congressmen differed. And in 1885 to 1905 this was more mainly dominated by moderates. उसके बाद मतलब शुरू जो हुई थी इंटरनेशनल कांग्रेस, वो मॉडरेट कांग्रेसमैन के साथ ही शुरू हुई थी. उसके बाद आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम आप देखोगे कि एक्सट्रीमिस्ट का जो रोल है उनका रोल इंपॉर्टेंट हो जाता है. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. So first and foremost thing which we are going to study about is factors promoting the growth of nationalism in India. तो पहली बात तो ये हमें देखनी होगी कि ये nationalism जो है ये आई कैसे, मतलब how did people get so aware कि now we need to fight against British, क्योंकि ये तो एजेंडा था ही नहीं पहले. आप देखोगे जो भी हम इसके पहले पढ़ रहे थे, इट वाज ऑल रीजनल फाइट्स. जो मराठास लड़ रहे हैं या मैसूर में लड़ाई हो रही है, हैदराबाद में लड़ाई हो रही है, दे आर नॉट नेशनलिस्टिक व्यू पॉइंट कभी था ही नहीं. रीजनल व्यू पॉइंट्स थे, सब अपने अपने एरियाज के लिए लड़ रहे थे. लेकिन ये जो नेशनलिज्म की ग्रोथ हुई ये क्यों हुई और कैसे हुई? सो देर आर मल्टीपल फैक्टर्स टू इट. फर्स्ट इज पॉलिटिकल यूनिटी. First time for the entire period, first time the whole area, we can't say the country because that time India was not born, so the whole region which was under British came under a single power, that is the British rule, which kind of gave a political unity to the region. कि एक ही पावर के अंदर पूरा एरिया जो है एक ही रूलर के अंदर है, एक ही पावर के अंदर है, तो वो एक पॉलिटिकल यूनिटी लेकर आया. सेकेंड वाज डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्ट. सो बेसिकली दिस वाज डन फॉर लाइक ब्रिटिशर्स के प्रॉफिट के लिए, बट ultimately it helped nationalist the growth of nationalism. How? Because now people could connect more. Now there were railways, telegraphs, postal services, roads, canals, so people could move from one place to another faster, and you could communicate through telegrams and postal services. So आपकी ट्रांसपोर्टेशन अच्छी होगी, कम्युनिकेशन अच्छी होगी, तो लोग एक दूसरे से बात कर सकते थे, कनेक्ट कर सकते थे, जो पहले नहीं हो सकता था क्योंकि ये फैसिलिटीज नहीं थी. So this was also one factor which kind of gave uh, promoted the growth of nationalism. Third factor is English language and Western education. So as I think I've already discussed in the last video, so English language is not something, a language to show off, but it is a common language spoken by most of the people in the world. So that also kind of helped कि यहाँ पे जब Indians बहुत ज़्यादा educated class थे, elite classes, not elite basically, जो educated classes थे, तो क्योंकि they got access to Western education, English language, so they could study various things and they could analyze the events going on in the world, like French Revolution. So French Revolution kind of gave the concepts of liberty, equality, and fraternity. So all these things came through the awareness, came through the knowledge. I mean, they understood English language. They got access to Western education, and that is why they got access to the principles of liberty, equality, freedom, and nationalism. So
देन दे अंडरस्टूड दैट ओके दीज आर आर राइट्स। पहले किसी को राइट्स ही नहीं पता थे तो डिमांड क्या करेंगे, बट इनको जब लोग बाहर गए पढ़े लिखे वापस आए तो उन्हें पता चला कि यार ये चीजें एग्जिस्ट कर रही है दुनिया में जो हमारे कंट्री में नहीं है या हमारे एरिया में नहीं है। तो इसीलिए उसके बाद दे केम बैक एंड दे स्टार्टेड डिमांडिंग कि नो वी ऑल्सो नीड दिस। ओके, देन फोर्थ फैक्टर इज द रोल ऑफ द प्रेस। ऑब्वियसली अभी देखिए एक शहर में कोई चीज हो रही है, एक एरिया में कोई चीज हो रही है, वो एक गांव के इंसान तक कैसे पहुंचेगी? देर हैज टू बी समथिंग, राइट? सो दैट रोल वॉज प्लेड बाय द प्रेस। ओके, सो इंडियन प्रेस बोथ इंग्लिश एंड वर्नाकुलर, लाइक वर्नाकुलर जो लोकल लैंग्वेजेस में है, सो दैट काइंड ऑफ कम्युनिकेटेड द इंसिडेंट्स। लाइक अगर कोई इंसिडेंट सूरत में हो रही है तो वो कोलकाता में कैसे पहुंचेगी, या कोलकाता में हो रही है तो हैदराबाद में कैसे पहुंचेगी, दैट रोल वॉज प्लेड बाय द प्रेस। सो ऐसे कर करके इंफॉर्मेशन लोगों के पास पहुंच रहा है कि हाँ यहाँ पे ये चीजें हो रही हैं। सो दैट ऑल्सो काइंड ऑफ प्रमोटेड द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म। Fifth factor is social and religious movements of the 19th century, which we studied in the last lesson. So, Brahmo Samaj, Ramakrishna Mission, Arya Samaj, Theosophical Society, all these, organizations, they kind of promoted, first of all, obviously, mankind, वो humanity वाली चीज़ है कि जो भी आपकी social ills है, उनको आप हटाइए। क्योंकि ब्रिटिशर्स इसी पे गेम खेलते थे कि, you are inferior because you don't follow good practices, your whatever activities you do, these are not good. So this was kind of, जो रिफॉर्मर्स थे उन्होंने आकर यही चीजें कही कि कुछ चीजें जो कुछ प्रैक्टिसेस हम फॉलो करें सोसाइटी में ये सही नहीं है, वी शुड रिमूव दिस। सो व्हाट हैपेंड आफ्टर दैट, पीपल गॉट अवेयर दैट हमारे कल्चर में गलती नहीं है, हमारी कुछ प्रैक्टिसेस में गलती है। अगर हम उन प्रैक्टिसेस को हटा दें देन कल्चर इज परफेक्ट। नो कल्चर इज एक्चुअली बैड। ओके, कुछ भी गलत चीज एक कल्चर में प्रमोट नहीं होती है, वी ब्रिंग दीज थिंग्स अप। ओके, so that reform was done by these social and religious movements. People were, brought back to कि आप वेदास पढ़ो, होता है ना, गो बैक टू द वेदास। तो ये सारी चीजें कि आप आपके कल्चर में प्रॉब्लम नहीं है, बी प्राउड ऑफ योर मदरलैंड, बी प्राउड ऑफ योर कल्चर, एंड just remove these social ills from the society. So that also kind of promoted the growth of nationalism. People understood कि no, we are not inferior, they got the pride again। जो inferiority complex आ गई थी वो हटने लगी, उनको अपने मदरलैंड पे, अपने कल्चर पे फिर से प्राइड फील होने लगा। तो वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हो गई फॉर द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म ऑल्सो। सिक्स फैक्टर इज इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन बाय द ब्रिटिश। दैट इज लाइक अब सबसे ऑब्वियस जो फैक्टर है वो यही वाला है। ओके, क्योंकि ऑब्वियस है जब फेमीन्स हो रहे हैं, लोगों को खाना नहीं मिल रहा, लोग गरीबी से मर रहे हैं, तो ऑब्वियसली फर्स्ट थिंग फर्स्ट जो किसी को भी, जो एक कॉमन पीपल को स्ट्राइक कर रही थी ड्यूरिंग ब्रिटिश वाज इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन। क्योंकि इन लोगों का वही होता था, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट में प्रॉब्लम कर दिए, ट्रेड ऐसा कर दिया कि इंडिया की सारी इंडस्ट्रीज ही खत्म हो गई। तो जो लोग बेरोजगार हो गए, हैंडलूम्स एंड एवरीवन, पेजेंट्स के ऊपर इतने रेवेन्यूज लगाते रहते थे। तो उन जो फर्स्ट हैंड फर्स्ट तो कॉमन मैन को सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो हुई थी वो पैसों की हुई थी। तो दैट वाज तो एकदम सबसे ऑब्वियस काइंड ऑफ फैक्टर विच हैपेंड, द इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन। बिकॉज drain of wealth theory, this was not by air. Drain of wealth is true because you have to think that they were ruling in our country, they were taking all the money from our country, and then they were paying from that money to their officials, and then again their trade was also going on through our money as well, and they would not allow our products to be sold in British, to in Britain. So this is how, everything was happening against Indians, I mean against these people. So obviously these people were mostly affected by the economic factors at the first hand first। बाकी सारी चीजें तो फिर भी कॉमन लोगों को नहीं समझ में आती हैं, लेकिन इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन वो तो सबको पता था। Then seventh factor is racial discrimination, which kind of resulted in revolt of 1857। तो revolt of 1857 का सबसे बड़ा रीजन ही racial discrimination था, कि वो जो आपका राइफल वाली चीज थी, आई थिंक दैट वाज जस्ट अ थ्योरी टू, लाइक दे नीडेड जस्ट अ रीजन टू स्टार्ट द रिवोल्ट। तो वो एक रीजन थी, बट इट वाज नॉट
only that कि बस मुझे मुंह से काटने पड़ेगा राइफल and it contains the fat of beef and pig. I mean, you imagine why would it be the combination of beef and pig only? I mean, I feel like I have a strong feeling that that conspiracy theory is kind of true because मतलब सोचने की बात है. But anyway, that was a very good strategy, I must say, because they just needed a reason to revolt and they got that. But अल्टीमेटली जो इंटीरियर रीजंस थे वो यही थे कि रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स ला रहे हैं, सैलरीज अलग अलग दे रहे हैं, पोजीशंस अलग अलग दे रहे हैं, जूनियर को जूनियर ब्रिटिश ऑफिशियल की ज़्यादा इंपॉर्टेंस है दैन द सीनियर official who has served more years, so Indian official. So that racial discrimination definitely promoted the growth of nationalism in India. एट्थ फैक्टर इज एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लिटन. तो लिटन ने तो बहुत ही भयानक भयानक काम किए. फर्स्ट इनकी फेमीन पॉलिसी फेल हुई, देन इन्होंने दिल्ली दरबार कंडक्ट किया इन द टाइम ऑफ फेमीन, जब लोग मर रहे हैं मिलियंस में. ही वॉज कंडक्टिंग दिल्ली दरबार विच वॉज वेरी वेरी एक्सपेंसिव. देन ही ब्रॉट वर्नाकुलर प्रेस एक्ट. वर्नाकुलर प्रेस एक्ट में इन्होंने कह दिया कि एनी एडिटर पब्लिशर एवरीबडी हैज टू साइन एन अंडरटेकिंग विद from before the magistrate that they will not publish anything against the English. So obviously ये आपको क्या लगता है, this will obviously give strong resentment against English to the Indians. आप अपोजिशन का अगर हक छीन लोगे किसी से तो वो तो फिर अपोज ही करेंगे आपको. ओके. देन थर्ड इज आर्म्स एक्ट. सो आर्म्स एक्ट 1878, बोथ वेर ब्रॉट इन 1878 बेसिकली, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट एंड आर्म्स एक्ट. सो आर्म्स एक्ट ने ऐसा किया कि कंपलसरी लाइसेंसिंग कर दी. तो अभी देखो लाइसेंसिंग कौन देगा, ब्रिटिशर्स के ऑफिशियल्स ही देंगे. तो काइंड ऑफ ये ऐसा था कि इंडियंस के पास आर्म्स पहुंचे ही ना. सो दैट ऑल्सो काइंड ऑफ एक रिजेंटमेंट क्रिएट हो गई थी थ्रू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लिटन. नाइन्थ फैक्टर वॉज द इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी, दैट इज लॉर्ड रिपन की टाइम में जो आई थी. तो लॉर्ड रिपन वॉज अ वेरी गुड मैन, सो ही ट्राइड टू काइंड ऑफ रिमूव द डिस्क्रिमिनेशन इन द जुडिशियल प्रोसेस. एंड क्या होता था कि पहले सिर्फ जो यूरोपियंस थे उनको बस यूरोपियंस जजेस ही फैसला सुना सकते थे. जो ट्रायल होती थी उनकी उसमें सिर्फ यूरोपियन जजेस हो सकते थे. तो उस चीज को लॉर्ड रिपन रिमूव करना चाहते थे थ्रू इल्बर्ट बिल कि नहीं, कोई यूरोपियन भी होगा तो यूरोपियन या इंडियन कोई भी जज उसके ट्रायल में हो सकता है. सो बट दिस वाज सीवियरली अपोज्ड बाय द ब्रिटिशर्स ऑफ कोर्स, एंड देन दिस बिल वाज रिपील्ड, जिसके दुख में लॉर्ड रिपन ने रिजाइन भी कर दिया था और वो चले भी गए थे. तो दिस कंट्रोवर्सी आल्सो काइंड ऑफ होता है ना, broke that bubble that Britishers want good for Indians and they are very fair to Indians. Indians understood that no, they are not fair and nothing. They just want their superiority to remain and they understand us as inferior people. So that bubble was broken, that they are good for us and they think good of us. So that is why Ilbert Bill controversy kind of promoted the growth of nationalism as well. सो नाउ विल स्टडी अबाउट अर्ली पॉलिटिकल एसोसिएशंस. तो ये वाले पार्ट बहुत ज़्यादा अच्छे से नहीं दिया हुआ था तमिलनाडु में, तो मैंने थोड़ा थोड़ा पार्ट जो है ये स्पेक्ट्रम से उठा के यहाँ पे कंसोलिडेट किया है, बिकॉज इफ यू आर स्टडिंग समथिंग दैट कंटेंट शुड नॉट बी ऐसा. ओके. सो 1851 में वन ऑर्गेनाइजेशन वाज ब्रॉट, दैट इज ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन. तो ये 1851 में ऐसे सीधे नहीं आई थी, इसके पहले दो ऑर्गेनाइजेशंस थे. लैंड होल्डर सोसाइटी, ठीक है, जमींदारी सोसाइटी भी जिसको बोलते थे, एंड बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी. तो ये दोनों मर्ज होकर ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन बने थे 1851 में. तो ये एक्चुअली इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों नहीं हुआ, क्योंकि दीज वेर लाइक होता है ना, सर्विंग द इंटरेस्ट ऑफ दीज पीपल ओनली. लाइक लैंड होल्डर सोसाइटी है तो जमींदार लोगों के इंटरेस्ट को दिखाएगा, ये ऐसे कोई नेशनलिस्टिक एजेंडा के साथ नहीं आती थी. फिर 1852 में आई बॉम्बे एसोसिएशन विच वॉज फाउंडेड बाय दादा भाई नरोजी. और मद्रास नेटिव एसोसिएशन के बारे में मुझे दो डेटा मिला है. मेनी पीपल आर सेइंग दैट बहुत जगह 1849 लिखा हुआ है और आई थिंक तमिलनाडु में 1852 लिखा हुआ था. मतलब समवेयर समथिंग इज रिटन एंड द अदर समथिंग. सो आई हैव रिटन बोथ 1849 एंड 52. आपको जो सही मिले आप प्लीज कमेंट्स में लिख दीजिएगा. ओके. सो दिस वाज स्टार्टेड बाय गाजुलू Lakshmi Narasu Chetty, Madras Native Association, and in 1866 this association is very very important. East India Association was brought by Dadabhai Naroji in collaboration with Indians and retired British officials in London. तो ये देखिए, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन इंडिया में नहीं बनाई गई थी, ये लंदन में बनाई गई थी. वहां पे ही बैठकर दादा भाई नरोजी ने ये बनाया था इन कोलैबोरेशन विद इंडियंस. और जो भी वहां पे रिटायर्ड ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे तो इंडिया के लिए अच्छा चाहते थे, उनके साथ मिलकर ये एसोसिएशन बनाया गया था.
नेक्स्ट इन 1870 पूना सार्वजनिक सभा आई थी एंड दिस वाज ब्रॉट बाय एस एच चिपलंकर, महादेव गोविंद रानडे एंड गणेश वासुदेव जोशी. Then in 1884, Madras Mahajan Sabha आई थी. M. वीरारवा घवाचारी, V. सुब्रमण्य अय्यर and P. आनंद चार्लू इनको लेकर आए थे. So you should know these. These are very very important associations. Early political associations में जो सबसे important हैं, these are this. So पुणे सार्वजनिक सभा, मद्रास महाजन सभा, every ये जो इसके founders थे इनके बारे में आपको पता होना चाहिए. चिपलंगर, राणा डे जोशी and मद्रास महाजन सभा में वीरारवा घवाचारी, सुब्रमण्य अय्यर and P. आनंद चार्लू. So remember these. Okay, so let's proceed. So finally, the Indian National Congress. So Indian National Congress was not brought by any Indian. So ये एक बहुत बड़ी fact मतलब important बात है. It was actually brought by Ellen Octavian Hume, जिनको A.O. Humes के नाम पे जानते हैं हम लोग, and he was a retired British civil servant who took the initiative to form an all India organization. Now इसके बारे में एक conspiracy theory है that this organization was kind of a strategy of British government to suppress the voice or the revolt which is going to take place again. Like 1857 में एक revolt झेल चुके थे वो, तो उनको नहीं चाहिए था अगला 1857. So they kind of strategized, और जिसको हम लोग safety valve theory के नाम से जानते हैं, कि एक safety valve की तरह इंडियन नेशनल कांग्रेस को बनाया गया ताकि जो भी इनकी प्रॉब्लम्स हो वो ये लोग रिवोल्ट ना करें बड़ा वाला जैसे 1857 में कर दिया था. ये वॉइस उनको उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस के थ्रू दिया कि तुम आओ चिल्लाओ, करेंगे तो हम कुछ नहीं. ओके, सो दिस वाज वन, this is one conspiracy theory. I don't know it is true or not, but A.O. Hume को बहुत अच्छे मतलब होता है ना व्यू पॉइंट से जाना जाता है कि ही काइंड ऑफ ब्रॉड दिस इनिशिएटिव. उन्होंने इंडिया के अच्छे के लिए एक ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन लाई, इंडियन नेशनल कांग्रेस, जहाँ पे इंडियंस अपने डिमांड्स को पुट फॉरवर्ड कर सकें टू ब्रिटिश कि वी नीड दिस फॉर आर बेटरमेंट. सो दिस वाज द इनिशिएटिव ऑफ एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, A.O. Hume. Okay. So first session of this Indian National Congress was brought in 1885 in Bombay and it was presided by Umesh Chandra Banerjee. So ये आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि ये कहाँ पे हुआ था. So first session was held in 1885 in Bombay, I think Gokul Das Tejpal Sanskrit College में, and this was presided by Umesh Chandra Banerjee. Second session जो हुई थी वो 1886 में हुई थी in Calcutta and this was presided by Dada Bhai Naroji. And third session was held in 1887 in Madras by, which was presided by बदरुद्दीन तैयबजी. प्रेसाइडेड बाय मतलब जो प्रेसिडेंट था उस सेशन का, जो प्रेसिडेंट था. ओके, सो अभी ये फर्स्ट 3 सेशंस आपको पता होना चाहिए और भी कुछ कुछ जो इम्पोर्टेंट सेशंस हैं वो आपको पता होना चाहिए. ओके, और जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशन हर साल होती थी अराउंड इन दिसंबर. तो इनका फिक्स था कि साढ़े साल ये लोग काम करेंगे और दिसंबर में सेशन होगा जहाँ पे फिर पूरी स्ट्रैटेजी डिसाइड होगी कि क्या करना है नहीं करना है, डिस्कशंस होंगे. सो दैट वाज लाइक द प्रोसेस ऑफ दिस. दैट इज वाई आप देखिए ये सिर्फ ऐसा नहीं कि 3 ही सेशन हुए थे, ये हर साल सेशन मतलब होता रहता था. सो नाउ वी विल सी द फेजेस ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट. तो जैसे कि मैंने ऑलरेडी इंट्रोडक्शन में भी बोला है दैट 1885 टू 1905 जो फेज था वो मॉडरेट नेशनलिज्म का था, जहाँ पे मॉडरेट नेशनलिस्ट दे फॉलोड द प्रोसेस ऑफ 3 P's, दैट इज पिटिशंस, प्रेयर्स एंड प्रोटेस्ट. तो ये लोग, इनका फंडा ये था कि हम पहले अपनी चीज़ों को पिटिशन डालेंगे कि होता है ना, हम लिख के देंगे कि ये हमें हमारे डिमांड्स हैं. देन वी विल रिक्वेस्ट देम विच वॉज थ्रू प्रेयर्स, that we will request them that please grant us these demands. And when that is also not heard, like when Britishers don't hear their prayers also, then they will protest, that also peacefully, not like aggressively. Peacefully they will protest that no, this we do not encourage, we need our demands to be met. So this was the strategy of moderate nationalists. They kind of remained loyal to the British. They kind of gave the message to the British that we don't want to throw you out of India, but please listen to our demands and do good for India. So this was the strategy of moderate nationalists. 1906 to 1916 was an era of Swadeshi movement, then rise of militant nationalism and home rule movement. तो 1906-1916 में आपको पता ही है पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ है बीच में, तो जब स्वदेशी मूवमेंट आई, फिर मिलिटेंट नेशनलिस्ट उठ कर आए जो
इंडिविजुअल हीरोइज्म जिनकी थी कि वो लोग अकेले अकेले खुद ही स्टैंड्स लेते थे और जहां उन्हें गलत लगता था वहां वो लोग एक्शन लेते थे। तो वो भी मिलिटेंट नेशनलिज्म काइंड ऑफ इसलिए भी आई थी उन क्योंकि जो लोग थे अभी नेशनलिज्म की ग्रोथ हुई तो उसके कुछ अच्छे और कुछ बुरी चीजें होती थी कि देखो लोग जब ज्यादा अवेयर हो जाते हैं देन दे स्टार्ट टेकिंग एक्शन ऑल्सो। जब शांत बैठे हैं तो कुछ नहीं करेंगे, लेकिन जब अगर अवेयर हो गए एक्टिव हो गए तो दे विल टेक एक्शन, दे कांट जस्ट सिट लाइक दैट। तो जो मिलिटेंट नेशनलिज्म था उसका बेसिक फंडा यही था कि देवर फीलिंग कि मॉडरेट नेशनलिस्ट ठीक से कर नहीं रहे कुछ, बहुत ही शांत बैठे हैं। तो ऐसे नहीं चलेगा काम। दैट इज वाई मिलिटेंट नेशनलिज्म काइंड ऑफ केम इन टू प्लेस। और होम रूल मूवमेंट भी फिर इसी चीज के लिए आया था कि इस चीज को फीलिंग लाने के लिए कि ब्रिटिशर्स नहीं, जो रूल होना चाहिए वो हमारे घर के अंदर से ही होना चाहिए। सो वो एक आइडिया भी होम रूल मूवमेंट के थ्रू थ्रू होता ना इंडिया में फैलाया गया। और फिर 1917 से 1947 तो फिर भैया गांधीयन एरा है वो, फिर तो महात्मा गांधी इज ए हीरो। तो वो जो बोलते थे सब करते थे। सो यस, ही वाज द मैन। सो 1917 टू 1947 वाज गांधीयन एरा। सो लेट्स सी द नेम्स लाइक जो मॉडरेट नेशनलिज्म, जो मॉडरेट नेशनलिस्ट थे उसमें लीडिंग फिगर्स कौन कौन से थे। तो एओ ह्यूम ऑफ कोर्स, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के फाउंडर भी थे। उमेश चंद्र बनर्जी जिन्होंने फर्स्ट सेशन प्रिसाइड किया था कांग्रेस का। सुरेंद्र नाथ बनर्जी, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। दादा दादा भाई नरोजी, सॉरी। देन फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले, पंडित मदन मोहन मालवीय, बदरुद्दीन तैयबजी, जस्टिस राणा डे, जी सुब्रमण्य अय्यर। तो ये सारे लोग मॉडरेट नेशनलिस्ट थे। आपको कभी कभी वो मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट के एग्जांपल्स देने पड़ सकते हैं कभी कहीं पे भी। आई थिंक मेंस के आंसर में, क्वेश्चन में तो आई डोंट थिंक पूछेंगे, बट स्टिल तो ये पूछ भी सकते हैं, हु नोस। सो यू शुड नो कि कौन सा जो कौन से फिगर, जो कौन सा पर्सनालिटी कौन से चीज में बिलीव करते थे। इधर ही वॉज अ मॉडरेट और ही वॉज एन एक्सट्रीमिस्ट। यू शुड नो दैट। So let us know something more about some important figures. That was Surendranath Banerjee. तो इनको इंडियन बूरके भी कहा जाता था। इंडियन बूरके इज एन फिलोसोफर। सो ही फाउंडेड द इंडियन एसोसिएशन। तो बेसिकली इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले एक जो अच्छी नेशनलिस्टिक एजेंडा के साथ जो एक एसोसिएशन थी वो इंडियन एसोसिएशन थी। क्योंकि आप देखिएगा पहले वाले जो एसोसिएशन थे वो सारे या तो रीजनल हैं या फिर कुछ लोकल इंटरेस्ट वाले हैं। लाइक होता है ना, अभी जमींदारों ने सोसाइटी बनाई है तो अपने इंटरेस्ट के लिए बनाई होगी। बट दिस इंडियन एसोसिएशन विच वॉज ब्रॉट बाय सुरेंद्रनाथ बनर्जी in 1876 was kind of with a nationalistic agenda. Then Surendranath Banerjee and Anand Mohan Bose they convened Indian National Conference 1883. तो ये जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है इसके पहले इसको होता है ना प्रिडिसेसर कहा जाता है इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस जो की गई थी उसको। ठीक है। जो 1883 में ऑर्गेनाइज करवाई गई थी बाय सुरेंद्रनाथ बनर्जी एंड आनंद मोहन बोस, विच मर्ज्ड विथ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1886। Okay. G. Subramania Iyer. Now, he was obviously, we have studied that he was one of the founding members of Madras Mahajan Sabha, which was brought in 1884, and he founded the Hindu, जो यूपीएससी एस्पिरेंट्स का भगवान है। सो यस, जी सुब्रमण्य अय्यर तो आपको पता होना ही होना चाहिए। ही फाउंडेड द न्यूज़पेपर जो द हिंदू हम पढ़ते हैं इन 1878 एंड तमिल न्यूज़पेपर स्वदेश मित्रन इन 1882। देन दादा भाई नौरोजी जिनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी बोला जाता है, वेरी वेरी पॉपुलर। ही वॉज द फर्स्ट इंडियन टू बिकम अ मेंबर ऑफ द ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स। तो ये एक ऐसे इंसान थे, आई मीन जो ब्रिटिश मतलब ब्रिटेन में रह के इंडिया को रिप्रेजेंट करते थे, होता है ना, इंडिया के लिए वॉइस बने हुए थे वहां पे जाके। एंड ही वॉज द फर्स्ट इंडियन टू बिकम अ मेंबर ऑल्सो ऑफ द ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स, इमेजिन। सो दादा भाई नौरोजी वेरी इंपॉर्टेंट, और इसलिए इन्होंने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन भी लेके आई थी, लंदन में बनाया था। ओके। सो मैं वही कह रही हूँ, ब्रिटेन में रह के वो इंडिया का वॉइस जो होता है ना बने हुए थे। Then Gopal Krishna Gokhale, who is also said as the political guru of Mahatma Gandhi, he founded the Servants of India Society in 1905. So you should know this as well. Very, very important societies these are. Gopal Krishna Gokhale, Servants of India Society. And he is also the political guru of Gandhi, known as the political guru of Gandhi. तो मेन डिमांड्स क्या थे मॉडरेट्स के, व्हाट डिड एक्चुअली moderates demand from the British. So first thing first they wanted was expansion and reform of legislative councils. So they wanted कि legislative councils में numbers बढ़ाइए और थोड़ा reform कीजिए, Indians का participation बढ़ाइए. Then they also demanded greater opportunities for Indians in higher posts.
okay, by holding the Indian Civil Service examination simultaneously in England and in India. So Indian Civil Service examination at that point of time was held in only England. So anybody who wants to give that exam had to go to England to give that exam. So people like who are poor, who cannot afford to go to England, how would they give Indian Civil Service examination? So that was one demand made by moderates, that Indians should get opportunity to be there in higher post, and for that it is important that the examination is held both in India and in England. Okay, then they also demanded separation of the judiciary from the executive. तो पहले क्या होता था, जो कलेक्टर है वही एग्जीक्यूटिव भी है, वही जुडिशरी भी है. कलेक्टर ही जज का काम भी करता था और एग्जीक्यूटिव का काम भी करता था. So one demand was that the separation of judiciary from the executive should be done. Then more powers for the local bodies, of course, so that local demands are met. Local demands could be understood, what people actually want from that region. So that is why more powers for local bodies are important. Then reduction of land revenue and protection of peasants from unjust landlords. तो बहुत ही ज़्यादा पेनफुल रेवेन्यू सिस्टम हो गया था. सो दैट वाज वन डिमांड ऑफ मॉडरेट्स कि प्लीज रिड्यूस द लैंड रेवेन्यूज एंड प्रोटेक्ट द peasants, बिकॉज सबसे ज्यादा तकलीफ उन्हें पहुंच रही थी. Then abolition of salt tax and sugar duty, because salt and sugar, these are like basic consumption items normal people need. So that was also one demand of moderates, that please abolish salt tax and sugar duty. And they wanted reduction of spending on army. So क्या होता था कि ब्रिटिशर्स को कहीं भी लड़ाई करनी है, anywhere Britishers wanted to like fight or they were having war, so all the expenses of that war, like on the soldiers or everything, was like made from the Indian, whatever the earnings were made from India, that was spent on these wars and all. So उससे क्या होता था कि इंडिया पे तो खर्च ही नहीं होता था. It was not like the expenses were not being made, were not being made on India or the welfare of Indians. Everything was going to their Britishers who were fighting against someone in the war. So that was one demand of moderate, that please reduce the spending on army and bring that expenditure to the welfare of Indians. Okay. And last was freedom of speech and expression and freedom to form association. So obviously वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से आपको क्या समझ में आता है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन तो कोई मतलब ही नहीं बना था. होता है ना, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट में उन्होंने सीधा कह दिया कि इफ यू आर गोइंग टू पब्लिश अगेंस्ट इंग्लिश यू जस्ट कांट डू दैट, एंड इफ यू वांट टू कीप पब्लिशिंग you need to give an undertaking to the magistrate that you will not publish anything against the English. So you can understand कि freedom of speech and expression was curbed. Nobody could express freely against anything if they wanted to. So that was one demand of moderate, that we should be given freedom of speech and expression and freedom to form associations. Okay, we can form associations to kind of give voice to our demands or represent a section of the society if we want to. Okay, so that was also one demand of moderates. So what were the actual methods followed by moderates? So first to three P's हमें पता ही है, petitions, prayers and protests. We have already discussed that. And they looked to England for inspiration and guidance. As I've already said, they were loyal to the British. They kind of conveyed them that we don't want to throw you out from our country, but you should give, whatever our rights are. So that is one thing they felt, that if we demand properly to the British, they will grant us that. So that was the agenda of moderates. And they confined their political activities to the educated classes only. So moderates, ये एक बहुत बड़ा फंडा है कि जो ये मॉडरेट नेशनलिज्म था 1885 से 1905 में, या उसके बाद भी जब तक गांधी नहीं आए थे तब तक कॉमन लोगों से कनेक्ट नहीं हो पाई थी कांग्रेस, क्योंकि वहां पे सारे एलीट पढ़े लिखे एजुकेटेड क्लासेस थे. सो कॉमन लोगों के साथ कनेक्ट ही नहीं हो पाई थी. आफ्टर महात्मा गांधी केम, ही काइंड ऑफ कनेक्टेड टू द पीपल, जो कॉमन लोग थे. दैट इज वाई देन इट बिकेम मोर बिग, द इंडियन नेशनल मूवमेंट बिकेम मोर बिग. So that also was one method of moderate, that their political activities were just confined to the educated classes. Also to attain political rights and self government stage by stage. तो इनका यही फंडा था कि हमें rights, political rights और self government stage by stage में मिले, एक बारी में नहीं मांगेंगे, धीरे धीरे we will keep demanding and ultimately we'll have our self government. So that was their one strategy.
And in starting, Britishers were very good to International Congress. Like in 1886, Governor General जो थे Lord Dufferin, he kind of gave a tea garden party for the Congress members in Calcutta कि Indian Congress के बनने की खुशी में. And that is why I think safety valve theory came, because safety valve theory में it is said that Dufferin kind of strategized that if Indian National Congress is brought up, then India will not revolt against British. They will just get a place to, you know, bring out their anger or grievances, and then they will not protest like they did in 1857. So that is why the safety valve theory kind of came up, क्योंकि इतनी खुशी इन्हें क्यों ही हो जाती कि ये टी गार्डन पार्टी दे रहे कांग्रेस मेंबर्स को. So that was one thing. But no offense, like AO Hume, we this is all conspiracy theory. We will still respect AO Hume because he kind of brought in a national congress which ultimately resulted in freedom of our country. So thank you, sir. And the only demand of the Congress granted by the British was the expansion of the legislative councils by the Indian Councils Act of 1892. तो इतनी सारी डिमांड से बेचारे करते थे, लेकिन एक ही डिमांड इनकी जो सुनी गई थी स्टार्टिंग में, दैट वाज एक्सपेंशन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल. सो इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1892 में इन्होंने मेंबर्स बढ़ा दिए थे, एडिशनल मेंबर्स सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में. तो यही एक चीज जो थी सुनी गई थी मॉडरेट्स की. सो व्हाट वर द अचीवमेंट्स ऑफ मॉडरेट्स? तो फाइनली कुछ तो अचीव अच्छा किया ही था इन्होंने, तभी तो आगे बढ़ा इंडियन नेशनल मूवमेंट. सो फर्स्ट अचीवमेंट, जो मेजर अचीवमेंट थी, वाज wide national awakening among the people. So even they could not directly connect to the common people, but still the organization came up and they were demanding for people. So anywhere कुछ ना कुछ information तो लोगों तक पहुंच ही जाती थी. तो it kind of gave a national awakening that yes, we are united, we are a country. ये feeling आ गई लोगों के अंदर. Then they popularized ideas of democracy, civil liberties, and representative institutions. So इन्होंने democracy कि होता है ना, this government should be by the people for the people. तो ये चीज को थोड़ा आइडिया लाया देश में. इसके पहले तो लोगों को ये आइडिया ही नहीं था कि ये सब चीजें भी होती हैं. सिविल लिबर्टी कि आपकी राइट्स क्या है, ये सारी चीजें भी मॉडरेट्स ने लाई कंट्री में. लोगों को पता चला दैट ओके, दीज आर आर राइट्स, वी काइंड ऑफ can demand this from Britishers. Then representative institutions में मतलब जब आपके लोग ही आपको रिप्रेजेंट कर रहे हो. ऐसे तो ब्रिटिशर्स किसी की बात ही ना सुने, क्योंकि वो आपके लोग नहीं, आपकी तकलीफ नहीं समझेंगे. बट इफ somebody from your own area is representing you, they understand the pain you are going through. So that was also one thing which was brought by moderates. Then they also explained how the British were exploiting Indians. Of course, I mean, there is a very popular drain theory जो हमने पढ़ी है, जिसमें दादा भाई नौरोजी ने, आई थिंक हमने नहीं पढ़ी है मतलब मुझे हमेशा लगता है कि ड्रेन थ्योरी हमने पढ़ी है कहीं. बट ड्रेन थ्योरी में दादा भाई नौरोजी ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि कैसे थ्रू सैलरीज, पेंशन्स, फिर आर्मी एक्सपेंडिचर एंड एवरीथिंग, लाइक इंडिया का जो पूरा वेल्थ है वो पूरा ड्रेन कर रहे हैं ब्रिटिशर्स. सो दिस वाज beautifully explained in drain theory in the book poverty and un-british rule in India by दादाभाई नौरोजी. So British इसके ये इतना इफेक्टिव था कि British government was forced to appoint the Welby Commission with दादाभाई as first Indian as the member to inquire into the matter. तो इतनी पॉपुलर हो गई थी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को एक कमीशन बैठानी पड़ी, वेलबी कमीशन, जहाँ पे दादाभाई इंडियन मेंबर थे, इनफैक्ट द फर्स्ट इंडियन टू बी इट्स मेंबर, ताकि इंक्वायर किया जा सके कि सही में ये ऐसा हो रहा है क्या, और अगर हो रहा है तो उसको कैसे ठीक करना चाहिए हमें. So also there were some important moderates like Ranade and Gokhale who favored social reforms. कि होता है ना, वही देश में हमारे जो social ills practices चल रहे थे, सती या widows का problems, तो everything could be reformed. Caste system. Then the moderates had succeeded in getting the expansion of the legislative councils by the Indian Councils Act of 1892. तो ये तो हमने पढ़ा ही कि हाँ, एक जो उनकी अचीवमेंट थी वो ये भी थी कि इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1902 में ब्रिटिशर्स ने उनकी फाइनली बात सुनी थी, एक्सपेंशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल्स वाला, और एडिशनल मेंबर्स को बढ़ाया गया था यहाँ पे. सो प्रैक्टिस क्वेश्चंस. सो इंडियन नेशनल कांग्रेस, आप पॉज कर सकते हैं वीडियो, बिकॉज आई जस्ट तुरंत मैं डिस्कस कर लूंगी. इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज फाउंडेड बाय A.O. Hume, Ellen Octavian Hume, and who among the following was the political guru of Gandhiji? That is Gopal Krishna Gokhale, and he also founded Servants of India Society. Okay, so you should know that. Next is the first session of the Indian National Congress was held at where?
Bombay. Okay, Gokul Das Tejpal Sanskrit College, and it was presided by Mumesh Chandra Banerjee. Second is who was the first Indian to become a member of the British House of Commons? Of course, Dadabhai Naroji, the grand old man of India. ठीक है, who also published drain theory in his book Poverty and Un-British Rule in India. So yes, and match the following है, फटाफट कर लेते हैं. दिल्ली दरबार किसके समय में हुई थी? लिटन, जिन्होंने फेमीन के समय में दिल्ली दरबार कंडक्ट किया था और इसीलिए बहुत क्रिटिसाइज हुआ था ये. देन एल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी किसके समय में हुई थी? द गुड रिपन, लॉर्ड रिपन. Indian Association was brought by Surendranath Banerjee, Servants of India Society by Gopal Krishna Gokhale, Drain Theory by our good grand old man of India, Dadabhai Naroji. So in the book, Poverty and Un-British Rule in India. So this is where we end the chapter. And I hope now you got faith again in me कि मैं videos वापस upload करूँगी. Yes, now I am अगेन स्ट्रीम लाइनिंग थिंग्स. सो आप जब भी कुछ सोचते हैं कुछ प्लान करते हैं तो उसके बाद ही एक गूगली मिलती है आपको लाइफ से. तो happens with everyone I think, and that is fine. So people who are with me in this channel, all the 62 people now, thank you so much, and we crossed 50 subscribers and I'm really happy with that. So thank you so much everyone who is staying with me in this channel. And बहुत अच्छी चीज़ ये है कि मैं कुछ ना भी कर रही हूँ तो सब्सक्राइबर्स इंटैक्ट रहते हैं, which shows that how much trust you people have in me, and I so like I'm so grateful for this literally. So I will not break your trust, that is done. Okay, so चाहे मुझे कितने भी sleepless nights देनी पड़े, it will be all worth that. So thank you so much for watching the video, and I'll see you in the next video. Bye bye.